This Euler's also known as Euler's Lagrange's equation. It is given by dou f by dou y minus d by dx into dou f by dou y dash equal to 0. Right now, इसी केस में या इसी इक्वेशन में कुछ केसेस है, सब केसेस. If your functional capital F does not contain y, then you have the formula dou f by dou y dash equal to c. Another form of Euler's equation, or a second form of Euler's equation, is that dou f by dou x minus d by dx f minus y dash dou f by dou y dash equal to 0. Right? Then second corollary is that if f does not contain x explicitly, then Euler's equation reduces to f minus y dash dou f by dou y dash equal to c. Then third formula, a quite a lengthier formula. Then third corollary, if f is independent of x and y both, then its formula is y is equal to ax plus b. Right? So these are the formulas, and based on these formulas, we have started with few examples. I guess we have completed 2 examples, and one homework question was given. Have you tried this question? Direct secondary people? Yes sir. सॉल्व किया इसको? आंसर कितना मिल रहा है इसका? What is the answer? Adil, कितना मिला आंसर इसका? सर c1 into x minus x square by 4 plus c2. c1x minus x square by 4 plus c2, राइट है. बाकी लोगों ने सॉल्व किया? हाँ सर, मेरा भी वही आया. अच्छा, गुड. बाकी लोगों ने सॉल्व किया क्या? सबका नाम लेना पड़ेगा. प्रणव, अभय, मोइन, फरजान, ट्राई किए थे? एटलीस्ट ट्राई करो. नहीं आएगा आंसर, वो बात की बात है, लेकिन ट्राई तो करना चाहिए. राइट? सो वी वर डिस्कसिंग द एक्सट्रीम फॉर फाइंडिंग द एक्सट्रीमल ऑफ दिस फंक्शनल, दिस इंटीग्रेशन x1 to x2 ऑफ दिस इक्वेशन f ऑफ. राइट? विजिबल है, सबको दिख रहा है? नाउ whenever there is a question for finding the extremal, we have to first of all check whether your functional f contains which term. Usually the functional must contain x, y and y dash. If any out of any one variable out of these 3 variables is absent, then you have some what you can say, some sub equations or sub what you can say equations ही बोलेंगे आप, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपकी इक्वेशन जो Euler's equation है, that is reduced into a simpler form. Right? 2 example हुए थे. Let us see few more examples. Next example, example number 4. Example number 4. This question was asked in चलो ये वाला लेते हैं. Find the extremal of integration x1 to x2 1 plus y square divided by y dash square into dx. Now if you observe, if you neglect this integration and dx part, this is your functional capital F 1 plus y square divided by y dash square. Right? Usually your functional must contain x, y and y dash. कौन सी टर्म इसमें प्रेजेंट नहीं है अभी? फिर y है, y dash है, x प्रेजेंट नहीं है. राइट? सो ये कल के एग्जांपल से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. सो यहाँ पे यू हैव टू राइट सिंस द फंक्शनल f does not contain x explicitly, so which formula we have to use? So we use f minus y dash dou f by dou y dash equal to c. Let me revise you कि अगर आपकी इक्वेशन में x नहीं है, ये है formula number 4. If f does not contain x explicitly, then Euler's equation reduces to f minus y dash dou f by dou y dash equal to c. So we'll use this equation number 4 for solving this example. So for that you need dou f by dou y dash. So call this equation number 1 and differentiate equation 1 with respect to what? With respect to with respect to y dash, no? Right? Y dash. So this will be dou f by dou y dash equal to, अब यहाँ पे 1 plus y square तो constant है आपका. Right?
ahad म्यूट करो अपने आप को. So 1 plus y square what is derivative of 1 upon 1 y dash square कितना होगा? What is derivative of 1 upon y dash square? Integration of derivative of 1 upon x square कितना होता था? -2 upon, नहीं बोल रहे आप लोग, -2 upon x क्यूब बराबर है. So यहाँ पे हो जाएगा -2 upon y dash cube. Is it right? This is dou f by dou y dash. Now putting this in equation number 2, your equation number 2 becomes f है आपका 1 plus y square divided by y dash square minus y dash into dou f by dou y dash. Dou f by dou y dash आपको कितना मिला है? That is 1 plus y square into -2 upon y dash cube. बराबर है. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. दिस इज इक्वल टू सी. समझ में आ रहा है कि क्या किया हमने बस इस इक्वेशन ये सॉल्व करना है हमको. तो इसके लिए आपको डो एफ बाय डो वाई डैश चाहिए था. आपने इस इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश. आपको ये इक्वेशन मिली. ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें. तो एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट किया, माइनस वाई डैश एज इट इज लिखा और डो एफ बाय डो वाई डैश ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज किया. सिंप्लीफाई कर लो इसको. ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस. ये होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई डैश स्क्वायर माइनस प्लस 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ पे एक वाई डैश और यहाँ पे वाई डैश क्यूब है तो एक वाई डैश कैंसिल हो जाएगा. बचेगा कितना डिनोमिनेटर में? वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी. अब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन होगा. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है. आप उनको कॉमन ले लेंगे. 1 प्लस वाई स्क्वायर तो यहाँ पे होगा 1 प्लस 2 divided by y dash square equal to c. Is it clear to everyone, boys? आदिल समझ में आ रहा है? आदिल? Yes sir. ओके ठीक है. Yes, अब sir. देखो यहाँ पे हो जाएगा 3. माइनस क्या? माइनस वाई डैश था ना, तो प्लस कैसे हो गया सर? ये वाला ना, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस बन जाएगा ना. मल्टीप्लाई है ये. माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा. अब यहाँ पे हो रहा है ये 3 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी. अब आपको यहाँ से इसको जो है रेसिप्रोकल लेना है. आपको वाई डैश में टर्म चाहिए. सो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा. सो ये होगा वाई डैश स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये जो सी था वो बन जाएगा 1 अपॉन सी. सी जो है कांस्टेंट है, 1 अपॉन सी भी एक कांस्टेंट बनेगा. उसको भी एक नया नाम दे सकते हैं आप, या इसको ऐसे ही रखना है, रख दीजिए. अभी आपको क्या करना है, ये दोनों टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, डिनोमिनेटर की टर्म को. तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू, ये 3 ऊपर आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर भी ऊपर आएगा, डिवाइड बाय सी एज इट इज रहेगा. लेकिन मुझे टर्म जो है वो वाई डैश में चाहिए, वाई डैश स्क्वायर में नहीं चाहिए. उमर देखो, अनम्यूट नहीं करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे तो फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा मुझे. टेकिंग स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं तो ये बन जाएगा वाई डैश इक्वल टू, यहाँ पे होगा अंडर रूट 3 अपॉन सी 1 प्लस वाई स्क्वायर. अब आप चाहिए तो ये अंडर रूट 3 अपॉन सी को एक नया कांस्टेंट बोल सकते हो. लेट अस से C1 भी बोल सकते हैं आप उसको. लेट अंडर रूट 3 अपॉन सी इज सम न्यू कांस्टेंट से C1. सो आपका इक्वेशन बनेगी वाई डैश इक्वल टू C1 अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर. बराबर है क्या? अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है क्योंकि मुझे एक y फाइंड आउट करना है, ना कि y डैश. तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको शिफ्ट कर लेते हैं. दिस विल बी नथिंग बट y डैश होता है आपका dy by dx.
इक्वल टू c1 अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से भी 1 प्लस वाई स्क्वायर को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट आपने देखा होगा जब आपने इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ा होगा, तो उसमें आप वेरिएबल्स को सेपरेट करते हो। तो ये वन प्लस वाई जो है वो वाई की वेरिएबल्स है, और वाई के जितने वेरिएबल्स आप उनको लेफ्ट हैंड साइड में ये कर रहे हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे होगा c1 वन इंटू डी एक्स। ये समझ में आ रहा है क्या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट? जो लोग नहीं थे या फिर डायरेक्ट Yes, सेकेंड ईयर के हैं, इसमें जो है ये टॉपिक है फर्स्ट ईयर में, जिसमें आप क्या करते हो, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हो। y के वेरिएबल जो है वो एक साइड में लेके जाते हो, x के वेरिएबल एक साथ में, और फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हो। सो यहाँ पे होगा वेरिएबल सेपरेबल। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। व्हाट इज इंटीग्रेशन? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी बोल सकते हो आप, इंटू डी एक्स, वो होता है साइन एच इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। एंड देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा साइन एच इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ c1 कितना होता है, c1 x प्लस सम न्यू कांस्टेंट से c2, राइट। अब आपको सिर्फ y चाहिए, यहाँ पे आपको y की वैल्यू चाहिए थी, तो साइन एच इनवर्स को इधर शिफ्ट करना है। तो आप एक काम करो, दोनों साइड पे साइन h से मल्टीप्लाई कर लो। If you multiply this equation by sin h on both sides, यहाँ से sin h inverse कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y इक्वल टू यहाँ पे होगा sin h of c1x plus c2, and this will be your answer. This is the extremal of the functional अंडर रूट इंटीग्रेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई डैश स्क्वायर इंटू डी एक्स। आ रहा है कि सबको समझ में? क्या किया आपने? आपने पहले देखा कि आपके फंक्शन में कौन सी टर्म प्रेजेंट नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली आपने यूज किया वो फॉर्मूला। अगर यहाँ पे y प्रेजेंट नहीं होता तो आप दूसरा पहला वाला फॉर्मूला यूज करते जो आपने लास्ट लेक्चर में किया था, राइट। क्योंकि यहाँ पे x प्रेजेंट नहीं था तो आपने ये फॉर्मूला यूज किया, सिंप्लीफाई किया, एक टर्म को जो है वो y डैश स्क्वायर में फाइंड आउट किया, फिर उसका स्क्वायर रूट लिया और फिर सिंप्लीफाई किया, तो आपको मिला है dy बाई डी एक्स इक्वल टू c1 अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर आपने वेरिएबल सेपरेट किए, y के वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड लेके गए और x के वेरिएबल राइट हैंड साइड शिफ्ट किए और फिर इंटीग्रेशन किया। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? समझ में आ गया सबको? Yes, sir. yes sir. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। Next example number 5. Now this is very important example, was asked in examination 2 times, 2014 and 16. This example is known as shortest distance problem. Shortest distance problem. क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इसका नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम। क्वेश्चन है that using the relation that the length of the arc इजान म्यूट करो अपने आप को, between 2 points A x1 y1 and B x2 y2 is given by सबको म्यूट कर दिया है, अगर किसी को डाउट रहेगा तो रेज योर हैंड। B x2 y2 is given by S is equal to integration x1 to x2 under root 1 plus y dash square into dx. Show that the shortest
smooth plane, shortest smooth plane curve between two points on a plane is a straight line. Is a straight line. इसी क्वेश्चन को एक अदर वर्डिंग में वो पूछ सकते हैं. determine the function that gives the shortest distance between two given points. This was asked in 2014 and 16 examination. So आपको कोई भी दो पॉइंट्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूला से. That means using the relation that the length of the arc between two points a x1 y1 and b x2 y2 is given by s, show that the shortest smooth plane curve between two points on a plane is a straight line. और बताना है कि it is nothing but a straight line. लाइन का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन इज, बेसिक चीजें नहीं भूलना है. इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, बराबर है. ये शो करना है आपको कि आपका जो y आएगा वो x प्लस बी आएगा. नेक्स्ट है डिटरमाइन द फंक्शन दैट गिव्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स. इस क्वेश्चन में बस पूछा है कि ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करो दैट गिव्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स. राइट, सॉल्यूशन देखते हैं. क्वेश्चन दिया है आपको s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 to x2 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू dx. अब इसमें देखो आपका फंक्शनल क्या होगा. आप इंटीग्रेशन और dx हटा देंगे, जो पार्ट बचेगा दैट इज योर फंक्शनल वाई डैश स्क्वायर, बराबर है. अब इसमें देखो कि कौन सी टर्म प्रेजेंट नहीं है. आपका फंक्शनल यूजुअली होता है x, y, वाई डैश से, बराबर है. उसमें से क्या क्या नहीं है. आप म्यूट अनम्यूट नहीं कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ. यहाँ पे x भी नहीं है और y भी नहीं है. सो इस केस में आइदर आप पहला फॉर्मूला यूज करो या दूसरा फॉर्मूला यूज करो. एक काम करता हूँ, मैं पहला फॉर्मूला यूज करता हूँ. सिंस और दूसरा जो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला यूज होंगे. एक होगा x प्रेजेंट नहीं है वो वाला फॉर्मूला, दूसरा होगा y प्रेजेंट नहीं है वो वाला फॉर्मूला. सो सिंस f डज नॉट कंटेन x explicitly तो क्या होगा. आप वी यूज कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. डो f बाय डो y डैश इक्वल टू c वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला y के लिए यूज होगा. वो आपको मैं होमवर्क देता हूँ. जब y प्रेजेंट नहीं रहेगा तो डो f बाय डो y डैश इक्वल टू c वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. x प्रेजेंट नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, f माइनस y डैश dou f by dou y dash equal to c. Call this equation number 1, call this equation number 2. So ये वाला पार्ट x प्रेजेंट नहीं है ऐसा मान के मैं इसको सॉल्व करता हूँ, और आपको होमवर्क रहेगा y x does not contain y explicitly वाला, यानी ये वाला फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए. सो मेथड 1 बोल देता हूँ इसको मैं, मेथड 1. मेथड 2 आपको होमवर्क रहेगा. इसके लिए आपको चाहिए डो f by डो y dash का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y dash. So what is dou f by dou y dash? अगर आप देखेंगे तो ये होगा dou by dou y dash of this term that is 1 plus y dash square raised to 1/2, बराबर है. इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1/2 1 plus y dash square raised to 1/2 minus 1 that is minus 1/2. डेरिवेटिव डायरेक्ट सेकंड पेपर आपको एटलीस्ट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो आता होगा. हमने x रेस टू n का फॉर्मूला यूज किया, तो x रेस टू n का फॉर्मूला होता है n x रेस टू n माइनस 1 इनटू, अब ये ब्रैकेट जो क्वांटिटी है वो भी एक फंक्शन है तो उसका भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y डैश. 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और y डैश स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y डैश. अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहे हैं और ये माइनस 1/2 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये बन जाएगा डो f बाय डो y डैश इक्वल टू y डैश
बाय अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। रेस टू 1/2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो प्लस 1/2 बनेगा, प्लस 1/2 रेस टू रहेगा, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट। ये समझ में आ गया सबको? अब ये यूज करो आप इक्वेशन नंबर 2 में। सो 2 बिकम्स एफ है हमारा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश dou f by dou y dash, dou f by dou y dash है y dash डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर और इक्वल टू c करना है आपको, राइट। मल्टीप्लाई करो इसको 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर से बोथ साइड्स, क्योंकि आपको ये डिनोमिनेटर की जो टर्म है एक मिनट, हाँ मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, ऑलराइट। सो अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करो ताकि ये डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट हट जाएगा, आपको टर्म मिलेगी 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस ये वाई डैश और ये वाई डैश बन जाएगा वाई डैश स्क्वायर, डिनोमिनेटर की टर्म यहाँ से हट जाएगी, इक्वल टू सी, सी से भी मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, राइट। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी नथिंग बट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर, ए 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा 1 इक्वल टू सी अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब आपको वाई डैश में टर्म चाहिए, दिख रहा है आपको सबको? आपको टर्म जो है वो वाई डैश में चाहिए। आपकी जो टर्म है वो वाई डैश में चाहिए। एक काम करता हूँ मैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी बन जाएगा। अब क्या करना है हमको, वाई डैश में टर्म चाहिए तो ये स्क्वायर रूट हटना चाहिए, तो एक काम करता हूँ मैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, या फिर पहले आप स्क्वायर भी करना है और रेसिप्रोकल भी लेना है, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा हमको। पहले स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, तो ये होगा 1/1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू से सी स्क्वायर। अब उसको नया नाम देंगे बाद में, पहले रेसिप्रोकल ले लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर का भी बन जाएगा 1/c स्क्वायर, बराबर है। अब इसको नया नाम दे देता हूँ विच इज इक्वल टू सी डैश, ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो, राइट। अब यहाँ से सिर्फ मुझे वाई डैश चाहिए, 1 नहीं चाहिए, तो 1 को शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे होगा वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी डैश माइनस 1। अब सी डैश माइनस 1 है, यहाँ से स्क्वायर रूट लेते हैं क्योंकि आपको वाई डैश चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा वाई डैश इक्वल टू अंडर रूट सी डैश माइनस 1, सब न्यू कांस्टेंट। अब ये भी एक कांस्टेंट है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस से बी। से बी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी स्ट्रेट लाइन का, तो मैं उस फॉर्मूला के हिसाब से आना चाहिए, इसलिए मैं इसको b लिया हूँ। आप उसको c1 भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। अब y डैश इक्वल टू बी बन रहा है, y डैश इक्वल टू बी। अब मुझे तो y डैश से y पे पहुंचना है, तो क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है तो इंटीग्रेट करते हैं इसको,
उसका रिवर्स पार्ट में इंटीग्रेट करते हैं। ये y डैश इक्वल टू b है, इंटीग्रेटिंग dy बाय dx इक्वल टू b करना है हमको, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। दैट इज नथिंग बट dy इज इक्वल टू b इंटू dx। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो dy का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट विल बी नथिंग बट y इक्वल टू b इंटू dx का इंटीग्रेशन होगा bx प्लस c, बराबर है। bx प्लस सी बोल दो या a बोल दो, कोई भी चलेगा। आपको अगर c चाहिए c रखो, b चाहिए b रखो, a चाहिए a रखो। अब इसी को अगर मैं मॉडिफाई करके लिखूँ, दैट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और यही तो हमको बताना था कि जो फंक्शनल है इसका इसका एक्सट्रीमल है, it is nothing but a straight line. In other words, the function that gives the shortest distance between two given point is given by this straight line y is equal to ax plus b. और आपका दूसरा पहला जो सब क्वेश्चन था, शो दैट द शॉर्टेस्ट स्मूथ प्लेन कर्व बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन, वो भी आपने प्रूव किया। आ रहा है क्या सबको समझ में? यानी इन शॉर्ट आपको बस ये इक्वेशन याद रखनी है। अगर आपको ये सेकेंड वाला पार्ट आया तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी चाहिए कि s इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इंटू डी एक्स है, इंटीग्रेशन x1 टू x2, इतना एटलीस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। दिख रहा है ये आपको पार्ट? अगर आप ये याद रखते हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे, सिंस f डज नॉट कंटेन x एक्सप्लिसिटली, देयरफॉर सिंपलीफाई करो, y डैश स्क्वायर में इक्वेशन आएगी, वहां से आप y डैश में टर्म लेके जाओ, फिर इंटीग्रेशन करो, राइट। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये तो हुआ जब f डज नॉट कंटेन x एक्सप्लिसिटली मैंने यूज किया है। दूसरा होमवर्क रहेगा मेथड 2, since f does not contain y explicitly, y explicitly तो इससे भी ज्यादा इजी है। सो वी विल यूज कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डो f बाय डो y डैश इक्वल टू c डैश। करेंगे आप लोग ट्राई फिर नेक्स्ट इसमें। यही पार्ट, यही जो क्वेश्चन अगर होमवर्क है ये, तो ये आपका ट्यूटोरियल का क्वेश्चन मिल जाएगा, बराबर है। तो ये पार्ट आपको ट्यूटोरियल क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा। आ जाएगा सबको? ठीक है। अभी वीडियो, एक मिनट अनम्यूट करता हूँ मैं। अभी वीडियो चल रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना? नो सर। यस सर चल रही है। ओके, ठीक है। अब आते हैं ये वाला पार्ट आप करेंगे होमवर्क, आंसर सेम ही मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी ही मिलेगा, a प्लस बी एक्स ही मिलेगा, बट आपको आपने दूसरे वे से किया है, मेथड 2 से। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब हमने दो एग्जांपल देखे हर एक टर्म के, जहाँ पे आइदर x प्रेजेंट था या फिर y प्रेजेंट था। अब आते हैं ऐसे पार्ट पे जहाँ पे तीनों भी प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6 या 7 होगा, 6, when f contains, मैं यहाँ पे टाइप लिख देता हूँ, टाइप है when f contains x y and y dash, ये टाइप है। एग्जाम्पल है फाइंड द कर्व on which the functional